Okay. So, can you tell me from which story this extract is taken? It is a large extract, so I don't think you will face any problem. Yes, which story it is? Actually, it is not a story. You can say it is an article. Sir, Yes. freedom of India. No, no, no. It is from your Oh, sorry, literature sir. That literature book. yes, sir. Literature. APJ. My childhood. Yeah. Now it Yes, is. sir. Yes, this extract is taken from my childhood, Dr. APJ Kalam. Okay, the greatest scientist of India till now. So you need to read the extract, just go through once, and then we will move to the question. Okay, and I have started from question number third. One and two, that is a passage based question, unseen passage based question, so that you have to read in home and solve it. Okay, in that I'm not giving any kind of clue, but for literature part, I'm giving clue and you have to solve it. Okay, I'm not saying the answer actually. I can only help you to get the right answer. So it is important to read the extract. I know you know that which story it is, though we have to read it. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. And see, these are the words you need to, when you get printed question paper, at that time you must underline these words because in word के ऊपर सवाल पूछा जाता है. ठीक है, मतलब जो थोड़े से अनकॉमन वर्ड है उसी में सवाल पूछा जाएगा और इसमें पूछा भी गया है. Just wait and watch. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. He told me, as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun, alone the without a nest, alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. Okay, so see, ये बात जो है मतलब अब एपीजे के जो पिताजी थे उन्होंने एपीजे के मम्मी से कहा और क्यों कहा ये भी हमको समझना चाहिए कि भाई वो यही हुआ होगा कि अबू अब्दुल एपीजे के जो मम्मी हैं she was not ready. She was not ready to leave her son. है ना? So at that time, father of APJ tried to convince APJ's mother, ठीक है, by saying a nice line from the poetry of Khalil Gibran. Khalil Gibran is a writer, he is a poet, you can say. ठीक है, तो उन्होंने कहा योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइव्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. See, one thing you must have found that the thinking of APJ's father is not common. It is something different. He speaks, high level language. ये कॉमन लैंग्वेज नहीं होता है, थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से वो बात करते हैं. अब क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, और आप गेस करो या फिर आप लॉजिक लगाओ विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म. दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ठीक है, इसी सेंटेंस को कैसे लिखा जा सकता है. देयर वॉज अ वेव ऑफ होपफुलनेस दैट द कंट्री हैड नॉट witnessed before.
or the whole country was imbued with cheerfulness. Third one, all Indians were filled with confidence about their future, or there was optimism all over the country that Indians could make much better. So, which one do you think is correct? The whole country was filled with an unprecedented optimism. Yes, my dear students, choose the correct option. Which option do you think correct? Please let me know. First option, there was a wave of hopefulness that the country had not witnessed before. Is that right answer? If you think so, then tell me. Option B, the whole country was imbued मतलब fulfilled you can say, भर गए थे. The whole country was imbued with cheerfulness. एकदम खुशी से पूरा country एकदम भर गया था. Or all Indians were filled with confidence about their future, or there was optimism all over the country that Indians could make a much better India. So you need to go through the extract again, then you need to think on it. The extract is like that. Then the second World War was over and India's freedom was imminent. ओके, इमिनेंट मतलब बहुत पॉजिटिव कह सकते हो. हमारा जो फ्रीडम है वो मिलना हमारे लिए मतलब पॉजिटिव था कि हमें मिल ही जाएगा. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ये गांधी जी ने कहा था उस टाइम. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द sentences before the sentence the whole country was filled with an unprecedented optimism, then only you can give the correct answer. Yes, so how many of you have tried? Please tell me which one is right option according to you. जल्दी करो बेटे, इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में. Which one must be appropriate? Okay, मैसेज आ रहा है. Let me see the messages. Okay, so I have got answers through chat box. Let me see. Okay, mixed answer I have got. Okay, so maximum of you have given D option. Okay, so what logic you have applied? Can you tell me? Means why do you think that D is correct? There was optimism all over the country that Indians could make a much better India. So if I ask you what logic you have applied, so what will be your answer? Harit is saying Sir, the World War II whole. got over, na? That's why. Okay, that is your logic. What about Raghav? What's your logic? वैसे सेंटेंस क्या है? The whole country was filled with an unprecedented optimism. If you have completed your notes, then you must have written the meaning of unprecedented. Can anybody tell me what does mean by unprecedented? उसका मीनिंग जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मीनिंग जान जाओगे तो आपको ऑप्शन चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. अनप्रेसिडेंटेड
Sorry, incomparable. इनकम्पेरेबल, और ऐसा भी कह सकते हो कि विच हैज़ नॉट सीन बिफोर, और विच इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। मतलब ऐसा ऑप्टिमिज्म पहले कभी फील नहीं किया था लोगों ने। तो फिर इस हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? एंड सी, यहाँ इस लाइन में ऐसा कहा नहीं गया कि इंडियंस जो है वो एक बेटर इंडिया बनाएंगे, है ना? कहीं लिखा गया है क्या? यहाँ सिर्फ इतना बोला गया है कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, ऐसे नहीं कि बेटर इंडिया, इसमें कहा नहीं गया है। तो डी ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि विच इज हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर, हैज नॉट बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर, सो दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अब बताओ कौन सा सही ऑप्शन होगा? और ऑप्टिमिज्म का मतलब होपफुलनेस, ये भी सही बात है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है होपफुलनेस, मतलब जब आप पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिव होप रखते हो, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिज्म। सर अभी कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? यस, दो ही चार लोग बस रिस्पांस देते हैं, बाकी लोग बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, कैसे होगा? और फाइनल एग्जाम का पेपर इसी टाइप, इसी पैटर्न से ही बनेगा, ये भी याद रख लो। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेपर ऑफ फाइनल एग्जाम विल बी इन दिस पैटर्न। ओके, लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। So the first option is correct actually. There was a wave of hopefulness that the country had not witnessed before. Okay. Next, in light of the extract, we can say that Abdul Kalam's father's view of the situation was lenient, indulgent, philosophical, permissive. So I have discussed with you कि उनका जो पर्सपेक्टिव था, उनके फादर के जो पर्सपेक्टिव था वो कैसा था? लीनियंट मतलब एकदम जो क्या बोलना चाहिए, स्ट्रिक्ट का ऑपोजिट, द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट, वन हु इज नॉट स्ट्रिक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियंट। नेक्स्ट, सेकंड वन इज इंडल्जेंट। ठीक है, इंडल्जेंट का जो मतलब इसको आप नेगेटिव में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब उनका नेगेटिव इन द सेंस कि एक तो होता है कि एक होता है स्ट्रिक्ट, एक होता है लीनियंट, और एक होता है इंडल्जेंट, मतलब जो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हाँ, ये चाहिए हाँ ले लो, वो चाहिए हाँ ले लो, मतलब हर चीज़ को आप परमिशन, हर चीज़ को परमिशन दे देते हो। ठीक है, विदाउट थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंस, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है बिना सोचे, दैट इज इंटेलिजेंट। थर्ड है फिलोसॉफिकल, एंड फोर्थ परमिसिव। परमिसिव वही इंटेलिजेंट और परमिसिव लगभग इक्वल है, नथिंग डिफरेंस। सो इसका आंसर तो बहुत इजी है, आई थिंक आप लोग सही आंसर चूज करे होंगे। Okay, those who are choosing A option, sorry, the third option is correct actually. देखो उनका बात देखो ना, मतलब जस्ट यू लुक एट द सेंटेंसेस। फर्स्ट यहाँ पर अब जब पूछा, मतलब उन्होंने क्या नाम है, डॉक्टर एपीजे ने जब पूछा अपने पापा से कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अबू, I know you have to go away to grow. फिर उन्होंने क्या कहा? Does the seagull not fly across the sun alone and without a mist?
तो ये जो है ये सब फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को कहा, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। सो दीज आर द थिंग्स विच आर फिलोसॉफिकल। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी क्या है, तीनों सेम है, लगभग लगभग तीनों का मीनिंग सेम है, लीनियंट, इंटेलिजेंट, परमिसिव। ओके, नेक्स्ट। Abdul's mother was hesitant about his going to study in Ramanathapuram. She was probably not confident about Abdul's academic capabilities. B option, unsure if Abdul could live in a new place all by himself. Third option, sad as she would miss having her son around her. And fourth option, thinking about the educational expenses the family would have to bear. So my dear students, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उनको पहले हटा दो। पहला वाला ऑप्शन लग रहा है कि ऐसा ऐसा कोई डाउट था कि अब्दुल के एकेडमिक जो पार्ट है वो कमजोर था? ऑफ कोर्स नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो जितने भी ऑप्शन लग रहा है कि एकदम हो ही नहीं सकता, उसे तो हटा दो। उससे क्या होगा, तुम राइट ऑप्शन के पास जल्दी पहुंच जाओगे। यस, हरित भाविक करेक्ट। आई थिंक ये वाला तो अभी सबको समझ में आ गया होगा क्या ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अनश्योर इफ अब्दुल कुड लिव इन अ न्यू प्लेस ऑल बाय हिमसेल्फ। ऐसा कुछ नहीं था, हमने स्टोरी पढ़ा था तो ऐसा कुछ नहीं था। अब्दुल जो है वो बहुत ही स्मार्ट, और आप जानते हो बचपन से ही वो जब वो एकदम छोटे बच्चे थे तब वो अर्निंग शुरू कर दिए थे, है ना। क्या बेच के वो अर्निंग करते थे, याद है क्या? कुछ बेच के उन्होंने अर्न किया था। न्यूज़पेपर। और भी कुछ उन्होंने बेचा था, याद करो। न्यूज़पेपर तो है ही, न्यूज़पेपर बांटा करते थे, सोचो इतने बड़े साइंटिस्ट। सर टैमरिंड सीड्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एमराइंड सीड बेच के उन्होंने 1 आना अर्न किए थे। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है ना कि वो कहीं भी जाके सरवाइव कर लेंगे। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। तो ये वाली बात फिर गलत हो गया। नेक्स्ट, सी को होल्ड पे रखते हैं। डी क्या है, थिंकिंग अबाउट द एजुकेशनल एक्सपेंसेस द फैमिली वुड हैव टू बेयर। क्या ये लग रहा है सही ऑप्शन? उनके पढ़ाई लिखाई खर्चा, इनके लिए कोई कंसर्न था? नो ऑफ सर। कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। ये तो उनके लिए, वो एक वेल टू डू फैमिली से थे, वेल टू डू फैमिली से थे, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो हमारे पास बचता क्या है, थर्ड ऑप्शन, सैड एज शी वुड मिस हैविंग हर सन अराउंड हर। ये असली रीजन है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, Sir, they were not belonging to well-to-do family, na? व्हाट फैमिली? Well-to-do family. सी, दे वर नॉट पुअर ऑल्सो। ठीक है, लोग गरीब तो नहीं थे, लेकिन देखो वो, उनकी मम्मी जो है हमेशा क्या करती थी, सड़क पे चलने वाले लोगों को बुला बुला के खाना खिलाया करती थी। और अब्दुल का कहना ये है कि जितने हमारे फैमिली मेंबर्स थे उससे ज़्यादा ही लोग रोज खाया करते थे। तो डू यू थिंक कि वो पुअर फैमिली से थे? हाँ, मैं रिच नहीं बोल रहा हूँ, दे वर नॉट मच रिच, बट दे वर नॉट पुअर ऑल्सो। सर अगर पुअर नहीं होते तो अब्दुल को काम पे नहीं जाना पड़ता ना, छोटी उम्र पे। दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। इट डजंट मीन दैट कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत अमीर है तो यू शुड नॉट वर्क। दैट इज द एक्चुअली रॉन्ग थिंग। ये तो इसीलिए देखो, यही एक वजह है कि अब्दुल कलाम अपनी मेहनत से इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। उन्होंने बचपन में ही देखो, उनके मम्मी पापा ने उनको नहीं रोका, वो सर बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग ना, चाइल्ड लेबर। सी चाइल्ड लेबर, एक्चुअली हम लोग चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं। चाइल्ड लेबर देखो, अभी आगे चाइल्ड का जो नीड है, या हमारा हमारा मतलब
what responsibility we have to परफॉर्म फॉर अ चाइल्ड, दैट इज हमें एक चाइल्ड को एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी हमको बच्चों को समझाना चाहिए। भाई वो आप पढ़ाई कर लिए लेकिन कहीं जाके इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हो, एक काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाते नहीं और सिर्फ ऐसा मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप उस बच्चे से काम करा रहे हो, दैट इज एक्चुअली क्राइम, जो कि चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं। अगर मैं बच्चे को स्कूल टाइम में भेज रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और फ्री टाइम में जस्ट लाइक हॉबी उसे कुछ काम करवा रहे हैं, तो दैट इज नॉट एक्चुअली चाइल्ड लेबर, ठीक है। वो चाइल्ड लेबर नहीं है, ठीक है, ओके। और वो जो काम है वो ऐसा नहीं कि वो दिन भर किया करते थे, अपना पढ़ाई भी किए हैं, घर का काम भी किए हैं, उसके बाद जो टाइम बचा उन्होंने सीट बेचा। और उनके मम्मी पापा ने इसीलिए नहीं रोका क्योंकि इट इज अ लाइफ स्किल, ठीक है। यू मस्ट नो हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। और ये तो हर एक किसी को करना चाहिए, चाहे पेरेंट मिलेनियर हो बिलियनियर हो, उनके बच्चों को सिखाना चाहिए लाइफ स्किल्स, ठीक है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू मस्ट नो दैट वॉरेन बफेट जो है वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। इवन बिल गेट्स भी शायद अपनी कमाई सब जो है चैरिटी में देके जाएंगे, अपने बेटे के लिए बहुत कम हिस्सा रख के जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ अब्दुल्स फादर्स मैसेज टू हिज मदर वॉज। एसेंस का मतलब होता है कि क्या बोलना चाहिए, भाव, है ना। भाव को हिंदी में बोलते हैं ना, वो वाला भाव नहीं, कितना भाव खा रहे हो यार, वो वाला भाव नहीं, फीलिंग, ठीक है। तो द एसेंस ऑफ अब्दुल्स फादर मैसेज टू हिज मदर वॉज, जो मैसेज उन्होंने दिया था ना, क्या मैसेज दिया था कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। यहाँ पर लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर, ठीक है। लॉन्ग, हमेशा लॉन्ग मतलब लंबा नहीं होता है, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर होता है। तो कौन सा हमें सही लग रहा है देखते हैं। नेक्स्ट पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन आर बोर्न ऑफ देयर पेरेंट्स बट देयर लाइव्स आर नॉट कनेक्टेड टू देम। ये सही लग रहा है क्या? व्हाट डू थिंक? नो सर। मेरे को तो सही नहीं लग रहा है, नो ऐसा सर। कोई कनेक्टेड तो रहते ही रहते हैं, नॉट कनेक्टेड तो नहीं कह सकते। सेकेंड क्या है, चिल्ड्रन आर बोर्न बिकॉज ऑफ लाइफ्स इवोल्यूशनरी प्रोसेस, पेरेंट्स आर ओनली द मीन्स ऑफ देयर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। जिस ऑप्शन में सर ओनली, ऑप्शन हाँ हम लोग राइट ऑप्शन में तो जरूर आएंगे। जहाँ जिस ऑप्शन में ओनली रहता है ना वो थोड़ा डाउटफुल रहता है, उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन आर बोर्न बिकॉज ऑफ लाइफ्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस, पेरेंट्स आर ओनली द मीन्स ऑफ देयर चेंज कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। सो अगेन आई डोंट थिंक दिस ऑप्शन इज suitable. See, children have a life and destiny of their own. They fulfill the purpose of life and not the will of their parents. ये थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है, फिर भी डी ऑप्शन देख लेते हैं। चिल्ड्रन हैव देयर ओन थॉट्स एंड दे विल डू एज दे विश। सो अगर हम अब्दुल के पापा के बात को फिर से देखते हैं, उनके फादर का जो कहना है कि दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, they come through you but not from you, you make it then your love but not your thoughts। तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि चिल्ड्रन हैव देयर ओन थॉट्स एंड दे विल डू एज दे विश, सिर्फ इतना उन्होंने कहा, तो ये भी हमें सही नहीं लग रहा है। तो सही ऑप्शन क्या लग रहा है भाई? सही ऑप्शन जो है वो है अगेन सी, कि चिल्ड्रन का क्या अपना एक डेस्टिनी है। सर हाईलाइट हो गया, हाँ, चिल्ड्रन जो है उनका एक अपना डेस्टिनी है और उनका जो लाइफ का पर्पस है वो उनके लाइफ का पर्पस फुलफिल करेंगे, ना कि पेरेंट्स। ठीक है, अभी सोचो अगर डॉक्टर एपीजे
रामेश्वरम से रामानाथपुरम नहीं आए होते तो शायद वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते, है ना। तो ये उनका लाइफ का पर्पस था कि एक साइंटिस्ट बनना है, ये उनका लाइफ का पर्पस था। सो द राइट ऑप्शन इज सी। क्या बात है, लगातार सी 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 बन रहा है ऑप्शन। लास्ट क्या है, विच वर्ड इन एक्सट्रैक्ट मीन्स लाइकली टू हैपन सून। ये आपको परेशान कर सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन परेशान मत हो, आंसर निकालने का तरीका बताया ना, एलिमिनेशन करना है। पहला ऑप्शन क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि जिसको पहले नहीं देखा गया था। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव अप्रोच। लॉन्गिंग मतलब डिजायर, जो अभी थोड़ी देर पहले लॉन्गिंग डिजायर मैंने कहा था। और इमिनेंट का मतलब क्या है, एक बार आप वापस से एक्सट्रैक्ट को देखो और इस लाइन को पढ़ो और से समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहे हैं कि देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। क्या लग रहा है, मतलब इमिनेंट का मतलब क्या होना चाहिए? यस, आई वांट रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर मतलब युद्ध खत्म हो गया था और इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। ऑब्वियस। हाँ, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ऑब्वियस में होता है, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, जो होने ही वाला है, ठीक है, ऑफ कोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्वियस। और यहाँ पर एक्चुअली ऑब्वियस का सेंस यूज नहीं किया गया है। इमिनेंट का, यहाँ का इमिनेंट का मतलब होता है कि जो होने ही वाला है, कैन से कि अबाउट टू हैपन। सो अब हमको समझ में आ गया कि राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन है इमिनेंट, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है भाई जो पहले कभी हुआ नहीं है। तो जो पहले कभी हुआ नहीं है और लाइकली टू हैपन में बहुत अंतर है ना। ऑप्टिमिज्म, जब आप पॉजिटिव सोच रखते हो, वो भी ऑप्टिमिज्म तो हो ही नहीं रहा किसी एंगल से। लॉन्गिंग भी किसी भी एंगल से नहीं हो रहा। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर, और कहाँ ये लाइकली टू हैपन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इमिनेंट। ठीक है, क्लास तो ओवर होने वाला है मेरा। अब काफ़ी टाइम हमको लगाना पड़ा एक क्वेश्चन के लिए, तो इसीलिए जो सैम्पल पेपर सॉल्व करना एक बहुत अच्छी हैबिट है और आपको घर पे बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से राइट ऑप्शंस को देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 का सी, 3 का भी सी, 4 का भी सी और 5 का डी। ठीक है, उसके बाद जो अगला एक्सट्रैक्ट है ये और में है, फिर भी हम करेंगे इसको। ठीक है, आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम इज गोइंग टू ओवर। सो यू डू दिस इन होम एंड कम विथ द आंसर। ठीक है, आंसर के साथ आओगे कल। कल मैं सबसे पूछूंगा आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद एक पोएट्री से सर भी। ओनली दैट एक्सट्रैक्ट ना, कि फुल बाकी सेट? बाकी पूरा 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 ये भी, ये मतलब ये बी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पोएट्री वाला एक्सट्रैक्ट है, इसको भी सॉल्व करो। ठीक है, सर ओनली लिटरेचर पार्ट की फुल? ओनली लिटरेचर पार्ट। ठीक है, फिलहाल लिटरेचर पार्ट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग अनसीन पैसेज में जाएंगे, ग्रामर में जाएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेज में, अनसीन पैसेज आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। ओके, यू मस्ट सॉल्व इट योरसेल्फ। बाकी ग्रामर और लिटरेचर में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, राइटिंग में भी आई कैन हेल्प यू। ठीक है, ओके, सो कम विथ राइट आंसर्स टुमारो। टुमारो, हाँ, सैटरडे। ओके, ठीक है, और इन एग्जाम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी देयर। क्वेश्चन लेवल ऐसा ही रहेगा।
इसीलिए हमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे सर। गुड डे। Good day, sir.